اور ناظرین ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں کشمیر، جہاں کے شوپیاں میں اس وقت NSA اجیت ڈوبھال وہاں کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ براہ راست ہم آپ کو تصاویر دکھا رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کشمیر میں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، وہاں کی مقامی لوگوں سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے۔ آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ شیف کا بزنس کیسے چل رہا ہے؟ اس سال تو ان شاء اللہ میرے خیال سے کافی فصل بھی ہے، سنا ہے کہ وہاں ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے۔ کیسی باتوں کو بھی سر مطلب ہماری جوڑ ہے تھوڑا ہم لوگوں کا یہ پلوامہ میں تجارت ہے کہ باغان ہے؟ باغان ہے بہت آپ کے تو کیسا ہے سب اچھا ہے، شکر اللہ۔ اچھا تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ بس اچھا رہنا چاہیے ہمیں، اچھا رہے گا ان شاء اللہ، اچھا رہے گا۔ آپ بڑا زندگی ہے، بڑا زندگی ہے، کوشش کریں گے سب لوگ آرام سے رہیں، اوپر والے کی مہربانی، اللہ جو کرتا ہے بھلائی کی دعا کرتے وہ کرے گا ہماری۔ بس ایسا ایسے نیک انسانوں کی دعا بڑی خاص ان میں اثر بھی ہوتا ہے اور یہ دعا کی نیک ہوتی ہے۔ آپ لوگ بالکل مطمئن رہیے، سب کچھ اچھا ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ آپ کی حفاظت، آپ کی سلامتی، یہی ہم لوگوں کا ایک ہے۔ اس طرح سے یہ خوشحالی آئے، اس طرح سے آپ کے بچے اور آپ کے بچوں کے بچے یہاں پر سکون سے رہ سکیں، آگے بڑھ سکیں، دنیا میں اپنا نام کما سکیں، اپنے لیے اپنی تجارت، اپنے مذہب، اپنے اس کے لیے اسلام کی حفاظت کر سکیں، اور ایک اچھے انسان کی طرح کیا روز روز کو بند کر کے رکھا ہوا کھیل کر بندی میں کھیل اس کو ہٹا کے ایک نیا ماحول میرا وہ چائے کے ساتھ چاول چائے ہے نا، آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ باتوں کو بھی سر مطلب ہماری جوڑ ہے تھوڑا ہم لوگوں کا یہ آرام سے رہیں، اوپر والے کی مہربانی، اللہ جو کرتا ہے وہ بھلائی کی بالکل مطمئن رہیے، سب کچھ اچھا ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ آپ کی حفاظت، آپ کی سلامتی، چائے ہے نا۔ تو قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کشمیر میں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ شوپیاں کی سڑکوں پر انہوں نے مقامی باشندوں سے بھی بات چیت کی ہے۔ باتوں کو بھی سر مطلب ہماری جوڑ ہے اوپر والے کی مہربانی، اللہ جو کرتا ہے وہ بھلائی کی دعا کرتے وہ کرے گا ہماری۔ بس ایسا ایسے نہیں ہم لوگوں کا ایک ہے، اس طرح سے یہ خوشحالی آئے، اس طرح سے آپ کے بچے اور آپ کے بچوں کے بچے یہاں پر سکون سے رہ سکیں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اجیت ڈوبھال نے وہاں مقامی لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا، ان سے بات چیت کی، وہاں کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کا انہوں نے جائزہ لیا، مقامی لوگوں کے تاثرات اجیت ڈوبھال نے جانے، اور یہ تمام وہ تصاویر ہیں جو وہاں پر ان کے سفر کو بیان کر رہی ہیں۔ شوپیاں میں عوامی گروپ سے انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے، وہاں کے حالات کے بارے میں وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان سے بات چیت کی ہے۔ تو قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کشمیر میں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دیکھتے 2-4 دن کے اندر آرڈر آ گیا، تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ان میں سر ہمارا ہمیشہ ستا ہوں کہ ہر حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے، مگر آپ بتاؤ کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں۔ اور جموں کشمیر پولیس ہمیشہ جو ہے اس نے اپنا پرچم اونچا رکھا ہے، ہندوستان کا پرچم ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ابھی پروموشن کتنی بڑھا کتنی ہوئی ہے ابھی، اور ابھی لائن لگی ہوئی ہے۔ تو لگاتار جموں کشمیر کے حالات سے ہم آپ کو واقف کروا رہے ہیں، اور اس وقت کی سب سے اہم خبر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کشمیر میں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے جو مقامی باشندے ہیں شوپیان میں، وہاں ان سے بات کی، ان کے ساتھ کھانا کھایا، اس کے بعد جو ہمارے جوان ہیں
उनका भी हौसला बढ़ाया, उनसे भी बात की। तमाम तर सूरत हाल का अजीत डोभाल जायजा ले रहे हैं। आप खाना नहीं खा रहे? कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कश्मीर में हालात का जायज़ा ले रहे हैं। तस्वीरों के ज़रिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अजीत डोभाल ने वहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनसे बातचीत की है, उनके साथ खाना खाया और सिक्योरिटी के जो हमारे जवान हैं उनका भी हौसला बढ़ाया, उनसे भी बातचीत की। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कश्मीर में हालात का जायज़ा लेते हुए। मगर आप बताओगे कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल सर, कर सकते हैं। यस सर। और जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा जो है इसने अपना परचम ऊंचा रखा है। हिंदुस्तान का परचम हो रहे कि नहीं हो रहे? अभी प्रमोशन कितनी हुई है अभी, और अभी लाइन लगी हुई है। आपको बताएं कि कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने आज जनूबी कश्मीर के इंतहाई हिस्सास माने जाने वाले इलाके शोपियां का दौरा किया। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी शब्बीर इस वक्त के हालात का आपसे अपडेट हम चाहेंगे, क्या कुछ ताज़ा हालात? है ना, जैसे कि आप हालात के बारे में उससे पहले आपको बताना चाहूँगा मैं, जो अजीत डोभाल की आप सीधे तौर अभी दिखा रहे थे कि वो किस तरह शुपियाँ जैसे इलाके में जहाँ पे मिलिटेंसी का एक गढ़ समझा जाता था, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ अभी भी मिलिटेंट एक्टिविटी हो रही है। वहाँ पे अजीत डोभाल का वहाँ आना, कोशिश ये की जा रही है कि 370 और 35A को कलअदम किए जाने के बाद और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद अब ये कोशिश की जा रही है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कि लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि ये जो फ़ैसले किए गए हैं वो फ़ैसले लोगों के हित में होंगे और उनसे लोगों की भलाई होगी। जहाँ तक हालात का ताल्लुक़ है तो यहाँ पे आज सिविल लाइन्स इलाके में ख़ास तौर पे लोगों को काफ़ी राहत इस सूरत में मिली कि हमने कई लोग देखे, गाड़ियाँ देखी जाती हुई, यहाँ से लोग पैदल भी चल पा रहे थे, नाके ज़रूर लगे हुए हैं, उन पे पुलिस का बंदोबस्त बराबर जारी है। लेकिन लाल चौक भी लोग आज जा पा रहे थे, हालांकि कम ही लोग घरों से बाहर निकले हैं, जिनको मजबूरी है वही इन सूरत हाल में ऐसी सूरत हाल में बाहर निकलते हैं, वो जा पा रहे थे, चाहे राजबाग का इलाका है या फिर सिविल लाइन्स के दूसरे इलाके हैं। हाँ, इतना ज़रूर है जो पुराना शहर है जिसे हम डाउनटाउन कहते हैं, उस इलाके में ज़रा सख्ती रहती है। वो सख्ती इसलिए कि वो इलाका वल्नरेबल है, वहाँ पे तशद्दुद भड़कने के चांसेस रहते हैं। कुछ इलाकों में पथराव की भी ख़बरें आई हैं, कुछ वाक़यात की, लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं हालात कशीदा हैं लेकिन काबू में है। जिस तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया था, इस पूरे, जैसे हम मुतवातिर ये बताते रहे हैं कि ये पूरा फैसला आने से पहले एक हफ़्ता जिस तरह से एक सिक्योरिटी का ग्रिड बनाया गया, फिर नाके लगाए गए, इस तरह लगाए गए हैं कि कोई भी किसी भी तरह की अगर कोई रिएक्शन होती है उस पर कैसे काबू पाया जाए। मुस्तैद हैं जहाँ पे भी सिक्योरिटी का नाका है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों को मुश्किलात भी हैं, है ना जी। शब्बीर, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हमने ये भी देखा कि किस तरह से अजीत डोभाल ने वहाँ पर जवानों का भी हौसला बढ़ाया है, काफ़ी अहम। कश्मीर के अंदर में विशेष परिस्थिति, कश्मीर और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया के अंदर में ये 2 खास जगह हैं जहाँ पर सीआरपी के लोगों ने बहुत उत्कृष्ट सेवा दी है। जहाँ पर आप लोगों ने जो सेवा की है, देखिए ज़ाहिर सी बात है, चूँकि अब यूनियन टेरिटरी भी हो गई है स्टेट, तो जैसे
जैसे सिक्योरिटी जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा रियासत को मिला है, तो जाहिर सी बात है पुलिस अब मरकज़ के इसमें कंट्रोल में आएगी। तो ऐसी सूरत में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में बढ़ चढ़ के जिसका हिस्सा रहा है, तो वो उनको ये भरोसा दिलाना कि उनका जो हित है, उनकी जो इंटरेस्ट्स हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है अजीत डोवल चूँकि सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, तो उनको दिलासा देना, उनको भरोसा देना ये ज़रूरी बनता है, और वैसा ही उन्होंने किया। जी शब्बीर, जिस तरह से लगातार हम वहाँ के हालात से अपने नाज़रीन को भी रूबरू करवा रहे हैं, सुबह से क्या कुछ वहाँ पर सरगर्मियाँ रही हैं, एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे। देखिए हिना, जहाँ तक आज सुबह से सरगर्मियों का ताल्लुक़ है, मैं आपको बता रहा था कि दफ़ा 144 नाफिज है। कई इलाकों में इसे कर्फ्यू बता सकते हैं आप, क्योंकि पिछले 2 दिन से जिस तरह के नाके हैं वैसे नाके हैं। आम ज़िंदगी ठप है। कई जगहों पे जो सेहत के शोबे से वाबस्ता लोग हैं उनकी भी शिकायत थी कि उन्हें कर्फ्यू पास नहीं दिए गए। हमारा भी जर्नलिस्ट जो हैं उनका भी हाल ये है कि हमारे पास कर्फ्यू पासेस नहीं है, टेलीफोन नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं है, इंटरनेट यहाँ पे बंद है। जो लोग यहाँ जिनके बच्चे बाहर हैं वो परेशान है कि कैसे उनको अपने घरों की खबर मिले, और जो लोग यहाँ पे हैं वो अपने रिश्तेदारों का अगर हाल पूछना चाहें, ईद आने वाली है उसके ताल्लुक़ से जो सरगर्मियाँ होती थी वो पूरी की पूरी ठप हैं। जहाँ तक सियासी सरगर्मियों का ताल्लुक़ है, तो जो मेन स्ट्रीम लीडर हैं सजाद गनी लोन है, 2 जो वज़ीर आला रहे हैं हमारे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, और जो बाकी जो मेन स्ट्रीम के लीडर हैं वो SKIC से उनको बंद कर दिया गया है, और बाकी जो सूरत हाल यहाँ पे है वो वैसी की वैसी है। लेकिन इतना ज़रूर है, जो पिछले 2 दिन के मुकाबले में आज हमें लगा कि कुछ लोग चल पा रहे थे, सड़कों पे चलते हुए दिखाई दिए, कुछ गाड़ियां भी चल पाई, अस्पताल जो एम्बुलेंस जाती हैं, जो ज़रूरी सर्विसेज हैं। हाँ, इतना ज़रूर है जो अस्पतालों में लोग हैं उन्हें मुश्किलात दरपेश है। अगर किसी को दवाई अस्पताल से बाहर लेनी हो तो वो मैसर नहीं है, पूरा बंद है, दुकानें बंद है, सिक्योरिटी नाके लगे हुए हैं हर जगह से। डाउनटाउन इलाका ख़ास तौर पे वहाँ पे लोगों को परेशानियाँ हैं, क्योंकि वो इलाका हमेशा वल्नरेबल रहता है, लिहाजा वहाँ पे सख्तियाँ ज़्यादा हैं, है ना। जी शब्बीर, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि वहाँ पर कुछ जुमे के बाद ढील दी जा सकती है? ये इतलात आई थी हिना कि जुमा की नमाज के बाद कुछ नरमी बरती जा सकती है। जी, आसार तो वही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जुमा जो होता है उस दिन नमाज से पहले कोई भी ढील देना मुनासिब नहीं समझेगी इंतज़ामिया, क्योंकि जुमा के दिन लोग नमाज को निकलते हैं और मजमा जमा रहता है। उम्मीद ये की जा रही है कि जुमा की नमाज के बाद शाम से शायद किसी तरह का कोई जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है, चाहे टेलीफोन लाइंस हों, लैंडलाइन ही हों, या मोबाइल में किसी तरह की उनको बहाल किया जाएगा, और फिर एक इंतज़ामिया जो है वो टेस्ट करना चाहेगी थोड़ी थोड़ी ढील दे के कि किस तरह का रिएक्शन रहता है। उम्मीद तो यही है कि जुमा नमाज के बाद शायद किसी तरह की राहत मिले, चाहे वो कम्युनिकेशन की हो या फिर लोगों को चलने फिरने की सूरत में हो, है ना। जी शब्बीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से हमें वाकिफ़ करवाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये है हमारे साथी शब्बीर जो कि वहाँ की ताज़ा सूरत हाल से हमको अपडेट करवा रहे थे। इस बीच आपको बताएं कि कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने आज जनूबी कश्मीर के इंतहाई हिसास माने जाने वाले इलाके शोपियाँ का दौरा किया। एक जानिब जहाँ वादी कश्मीर में कर्फ्यू और बंदिशें आयद हैं, तनाव भरे हालात हैं, और ऐसे में कौमी सलामती मुशीर ने शोपियाँ में मकामी अफराद से मुलाकात की।
तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अजीत डोभाल मकामी लोगों से तबादला ख्याल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कौमी सलामती मुशीर ने मकामी लोगों के साथ लंच भी किया। इस दौरान अजीत डोभाल ने सिक्योरिटी फोर्सेस से भी मुलाकात की, सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन फराहम करने वाली आइन की दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया गया है। रियासत की 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलहदा यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं। और वहीं दफ़ा 370 की मनसूखियत जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा देने के तनाजुर में वादी के कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां बरकरार हैं। मुख्तलिफ रास्तों को सील कर दिया गया है। हसास मकामात पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। बाज़ हल्की नौयत के वाक़यात को छोड़कर वादी कश्मीर में सूरत हाल मजमूई तौर पर पुरअमन ही है, कंट्रोल में है। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन भी बदस्तूर बंद ही हैं। और इस सब के बीच जम्मू शहर की अगर बात की जाए तो जम्मू शहर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से दफ़ा 144 नाफिज है, ताहम यहाँ हालात पुरअमन है। शहर के किसी भी इलाके से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। हालात बेहतर होने के चलते ज़िला इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 में नरमी करके लोगों को आवाजाही की इजाज़त दे रखी है। अगरचे शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर खारदार तार बिछाई गई है, ताहम प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। शहर के कई इलाकों में चंद दुकानें भी खुली देखी गई। और चलिए हम सीधे रुक करेंगे एडिटर मनोज कौल का। मनोज, आपसे इस वक्त के ताज़ा हालात जानना चाहेंगे, किस तरह के वहां पर अभी सूरत हाल? देखिए, जम्मू खित्ते की अगर बात करेंगे तो यहाँ हालात धीरे धीरे मामूल पर आने लगे हैं। हालांकि इतनी तेज़ी से नहीं आ रहे हैं जितना कि एक्सपेक्टेड था। अभी भी दफ़ा 144 जो है वो नाफिज है। जम्मू शहर में आज हमने देखा सुबह से ही अलग अलग जगहों पर नाके लगे हुए हैं। हालांकि लोगों को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। कुछ ऐसे हसास इलाके हैं जहाँ पर अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वहाँ लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्हें जाने की इजाज़त दी जाती है। अभी हमारे पास रामबन से खबर आई कि जो रामबन का जो मार्केट प्लेस है, कस्बा जो है, वहाँ कुछ दिन पहले 2 दिन पहले वहाँ कर्फ्यू नाफिज किया गया था। वहाँ पर आज 3 घंटे की ढील दी गई है। इसी तरह जो जम्मू डिवीज़न के बाकी जो इलाके हैं, उधमपुर हो, कठुआ हो या सांबा हो, वहाँ जो हालात हैं धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं। हालांकि उधमपुर के अभी भी कुछ इलाकों में बंदिशें हैं, लेकिन सांबा और कठुआ का जो इलाका है वहाँ अब हालात ठीक हैं। वहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहाल हो गई है। राजौरी और पूंछ में अभी थोड़ी सी तशवीश है, लेकिन हालात वहाँ पर भी काबू में हैं। और इंतज़ामिया की ये कोशिश है कि जैसे ही हालात मामूल की तरफ आएंगे, जैसे ही उन्हें लगेगा कि हालात में अब बेहतरी वाक़ा होने लगी है, उसके बाद से दफ़ा 144 जो है, जो लगाया गया है जम्मू डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में, उसे लिफ्ट किया जाएगा ताकि लोग जो हैं अपना मामूल का कारोबार कर सकें, अपनी मामूल की ज़िंदगी बसर कर सकें। जी मनोज, एक बात और बेहद अहम कि कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल का जो ये दौरा वहाँ पर है, अभी जिस तरह से हम दिखा रहे थे, काफ़ी अहम माना जा रहा है सिक्योरिटी के मद्देनज़र से। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो दौरा है NSA अजीत डोभाल का, वो न सिर्फ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, बल्कि जो एक ह्यूमन जेस्चर है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसकी बहुत ही ज़रूरत थी। क्योंकि हम पहले भी बात करते आए हैं कि जब ये फ़ैसला आया तो कश्मीर में जो मेजॉरिटी जो लोग थे वो इस फ़ैसले से नाराज़ हैं, वो इस फ़ैसले से मायूस हैं। वो नहीं चाहते थे कि दफ़ा 370 हटाया जाए, 35 से हटाया जाए, जिसकी वजह से उन्हें नाराज़गी है। उन्हें कई एक इलाकों में कुछ गुस्सा भी है, जिसके मद्देनज़र सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी को बहुत टाइट किया गया। और आज हम ये कह रहे थे कि पहले जो जिस तरह के हालात हैं, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, दफ़ा 144 नाफिज है, कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज किया गया है, तो सरकार की ये कोशिश है कि पहले लोगों में जो नाराज़गी है, लोगों में जो मायूसी है, वो मायूसी कम हो जाए, वो नाराज़गी कम हो जाए। और उसके बाद ये ज़रूरी है कि कुछ ऐसे इक़दामात किए जाएँ
ताकि लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाए कि जो फैसला लिया गया है वो लोगों के हित में है, वो लोगों के फेवर में है, लोगों की भलाई के लिए लिया गया है। और आज जब अजीत डोभाल शोपियान जाते हैं, एक ऐसा इलाका जो मिलिटेंसी से काफ़ी मुतासरा इलाका है, और वहाँ लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, बिना किसी प्रोटोकॉल के लोगों के शोपियान टाउन में लोगों के साथ खाना खाते हैं, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जहाँ मरकज़ी हुकूमत की ये कोशिश है कि लोगों के साथ मिला जाए। जो लोग ये चाहते हैं कि ये जो फैसला हुआ है आखिर उन्हें इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, उन्हें ये समझाने की कोशिश की जाए कि ये जो फैसला हुआ है वो इनके हित के लिए है। साथ ही जो उन्होंने पुलिस के साथ बातचीत की, तो पुलिस के साथ जब वो इंटरेक्ट कर रहे थे तो उसमें अगर आप ऑडियो देखेंगे तो उसमें वो ये पुलिस की सराहना करते नज़र आए हैं। उन्होंने पुलिस से ये कहा है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो रोल रहा है मिलिटेंसी का मुकाबला करने में, वो बहुत ही सराहनीय रहा है, वो काबिल तारीफ़ रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस को आगे भी एक पॉजिटिव रोल निभाना होगा, एक अच्छा रोल निभाना होगा। ये भी पुलिस जो एहलकार हैं उन्होंने उनको ये भी कहा कि आगे आने वाले जो दिन हैं उसमें उन्हें काफ़ी काम करना होगा। उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आम लोग जो हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। और वादी के हालात जो अभी काफ़ी तशवीशनाक हैं, क्योंकि अभी काफ़ी टेंशन है वैली के अंदर, उन हालात को काबू करने के लिए, उन हालात को नॉर्मलसी पर लाने के लिए, मामूल पर लाने के लिए उन्हें काफ़ी रोल अदा करना होगा। तो यानी अजीत डोभाल का जो आज का दौरा था, एक तरफ वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ उनकी एक मैसेज है कि मरकज़ी हुकूमत ये चाहती है कि उन लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए और उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि जो फैसला लिया गया है वो उनके हक में है। और ये हम कल से ही बात कर रहे थे कि इस तरह के जेस्चर्स जो हैं, इस तरह की जो कोशिशें हैं वो ज़रूर करनी पड़ेंगी मरकज़ी हुकूमत को। और आज ये शुरुआत हुई है, सिर्फ अजीत डोभाल के वहाँ जाने से सारा मसला हल नहीं होगा, लेकिन एक मैसेज जरूर गया है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कि वो लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे और लोगों के साथ मिलेंगे। और ऐसा लगता है कि आइंदा दिनों में कुछ इसी तरह के और स्टेप्स लिए जाएंगे, कुछ और जो सियासतदान हैं या बाकी जो लोग हैं वो भी कश्मीर का दौरा करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और उन्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो फैसला लिया गया है वो उनके हक में है, ताकि कश्मीर के जो हालात हैं, जो अभी जो कशीदगी वहाँ पर पाई जाती है, उस पर काबू पाया जाए और हालात मामूल पर आ जाए। जी मनोज कौल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे मनोज कौल जो कि बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर तमाम जो सूरत हाल है उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। और मनोज कौल का साफ तौर पर यह भी कहना था कि अजीत डोभाल का ये जो दौरा है, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल, उन्होंने आज जनूबी कश्मीर के बेहद हसास माने जाने वाले शोपियां का दौरा किया। न सिर्फ दौरा किया बल्कि वहाँ के लोगों से भी बातचीत की है। तो ये एक बेहद अच्छा जेस्चर माना जा रहा है, लोगों को समझाने की जो कोशिश है कि उनके हक में ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। ये एक अच्छा फैसला माना जा रहा है, अच्छा कदम माना जा रहा है। उधर दफ़ा 370 की अगर बात करें तो दफ़ा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा देने के तनाजुर में वादी के कई इलाकों में आज तीसरे रोज़ भी कर्फ्यू जैसी पाबंदियां बरकरार रहीं। मुख्तलिफ रास्तों को सील कर दिया गया। हसास मुकामात पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। बाज़ हल्की नौइयत के वाक़यात को छोड़कर वादी कश्मीर में सूरत हाल मजमूई तौर पर पुरअमन है, कंट्रोल में है। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन भी बदस्तूर बंद हैं। असलधारे की सियासी पार्टियों के कई लीडरान हिरासत में ही हैं। इस दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी उमर फारूक को रिहा किया गया, ताहम उन्हें घर पर नज़रबंद रखा गया। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज़ भट्ट ने वहाँ के हालात का जायज़ा लिया है। ये कश्मीर में आज हालात पुरतनाव रहे, ताहम काबू में रहे। हालांकि कई जगहों से स्टोन पेल्टिंग की इतलात मौसूल हुई, ताहम किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। यहाँ अगर हम श्रीनगर के हवाले से हम बात करें तो यहाँ आज चौथे रोज़ भी बदस्तूर कर्फ्यू जारी रहा। जगह जगह इसी तरह बैरिकेड्स लगाए गए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था और लोगों की नकलो हमल को रोक दिया गया था। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो सिविल लाइन्स एरिया है, सिविल लाइन्स एरिया में आज हमने देखा कि गाड़ियों की नकल हमल
जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो चलती दिखाई दी। कई जगहों पे बैरिकेड्स थे, ताहम जो गाड़ियां हैं उनको रोक के उनके कागजात वगैरह, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के उनको जाने दिया जाता था। अगर शहर ख़ास के हवाले से हम बात करें तो शहर ख़ास में सख्त तरीन कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया गया था और किसी को भी वहाँ जाने की या वहाँ से चलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अगर हम मोबाइल इंटरनेट, फ़ोन्स या फिर लैंडलाइंस के हवाले से बात करें तो आज चौथे रोज़ भी ये सारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ठप रहा। कुल मिला के देखें तो सूरत हाल वादी में पुरतनाव है, ताहम अभी तक जो हालात हैं वो काबू में हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मेन स्ट्रीम लीडर्स की, तो मेन स्ट्रीम लीडर्स को आज भी नज़रबंद रखा गया है, चाहे वो दोनों साबिका वज़ीर आला हों, उनको भी आज भी हिरासत में ही रखा गया है। ताहम दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो मीरवाइज़ उमर फ़ारूक हैं उनको कैद से रिहा करके अब उनके घर पे ही नज़रबंद कर दिया गया है। गुलशन नवाज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने जनूबी कश्मीर के इंतहाई हसास माने जाने वाले इलाके शोपियां का दौरा किया। और अगर वादी कश्मीर के हालात की बात करें तो वहाँ कर्फ्यू और बंदिशें आयद हैं और तनाव भरे हालात हैं। ऐसे में कौमी सलामती मुशीर ने जो मकामी लोगों के साथ बातचीत की है, उनके साथ तबादला ख्याल किया है, उनके साथ लंच किया, खाना खाया, उनको वहाँ के जो हालात हैं उससे वाकफियत हासिल की। ये तमाम चीज़ें जो है ये एक अच्छा जेस्चर माना जा रहा है। और सिर्फ मकामी लोग ही नहीं बल्कि अजीत डोभाल ने सिक्योरिटी फोर्सेस से भी मुलाकात की, सिक्योरिटी इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और वहाँ पर वो मकामी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जो फोर्सेस हैं, जो जवान हैं, उनका भी हौसला बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से मनोज कौल ने बताया, अजीत डोभाल का ये जो कदम है, ये सरकार की तरफ से जो कदम है, ये काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि अभी वहाँ पर लोगों को ये समझाना होगा कि किस तरह से उनके लिए सरकार बेहतरी चाहती है, उनकी सलामती चाहती है, उनकी सिक्योरिटी सबसे अहम है। ये तमाम जो स्टेप उठाए जा रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनकी सिक्योरिटी के लिए ही उठाए जा रहे हैं। खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।